धन्यवाद। अब मैं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। Honorable Congress President, Honorable former Congress President Srimati Sonia Ji, Honorable former Congress President Shri Rahul Ji, General Secretary Shri K.C. Venugopal, members of the Congress Working Committee, senior leaders of the Congress, Karyakartas of the Congress, members of the media. I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what is happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress Manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt
read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian institutes of technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs, and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or the Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying that Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol
and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद चिदम्बरम साहब। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आज हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी
हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी में किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है, और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएस की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए, ये न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा। या किसी के फॉर्म में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC/ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स में संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं। और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे। और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस न हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी
खंड है जिसमें विदेश नीति भी है और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें, पढ़ के इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनाव से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। ये हमारा 139 इयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को
और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीजें मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपल्सरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, 5 न्याय की बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 पिलर्स पर 25 गारंटियां स्थायी रूप से बनी हुई हैं और ये गारंटी की बात उन्होंने कही है, 5 पिलर्स की बात की। और जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र की बजाय न्याय पत्र जारी किया है, इस बार न्याय पत्र का नाम दिया गया है कि न्याय पत्र है। और उन्होंने कहा है कि ये न्यायिक दस्तावेज के रूप में ये पहचाना जाएगा। युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, कृषक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात करते हुए उन्होंने एक और बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनके अलग अलग खंड में जिस तरह से लोकतंत्र बचाओ की बात कही गई है, न्यायपालिका और मीडिया की आजादी की बात कही गई है, सवाल खड़े किए हैं क्या वर्तमान में मीडिया और न्यायपालिका को आजादी नहीं है। लोकतंत्र बचाओ की उन्होंने बात कही है, तमाम चीजें हैं, कितना असर पड़ने वाला है। और जिस तरह से पी चिदंबरम ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, जॉब्स जॉब्स जॉब्स, एवरीबॉडी क्राइंग फॉर द जॉब्स इन इंडिया। क्या वास्तव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाली है कांग्रेस? और मुद्दा बनाएगी तो कितनी हवा दे पाएगी लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस के घोषणा पत्र का कितना असर होगा और जनता तक कितनी पैठ बना पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, हम जवाब के लिए बात करेंगे। हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही हैं, जिस तरह से तमाम चीजें आई हैं कि पहले से तय था कि ये चीजें आ जाएंगी। सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के न्याय पत्र पर, क्योंकि इस बार उन्होंने वचन पत्र, घोषणा पत्र या दृष्टि पत्र ना देकर के न्याय पत्र का नाम दिया है। देखिए, कांग्रेस आज भी एक्सपेरिमेंट में लगी हुई है, क्योंकि पहले घोषणा पत्र हुआ करता था, उसके बाद दृष्टि पत्र आया और अब न्याय पत्र उन्होंने जारी किया है। और न्याय में पंच न्याय का नाम दिया है। और किसान न्याय के विषय में बताना चाहूंगा, जो 5 न्याय है, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय और किसान न्याय जी। मैं आपको 5 के बारे में विस्तार पूर्वक बताना ये चाहूंगा जी। उन किसानों के साथ न्याय कौन करेगा जिनके लिए राहुल गांधी ने उंगलियों में गिनाया था सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर जी हम किसान कर्ज माफ कर देंगे जी। उनके आज तक माफी नहीं हुई। उन किसानों के साथ में न्याय कौन करेगा? उन नारी के साथ में न्याय कौन करेगा जिन नारी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने टंच माल कहा था जी। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो उन महिलाओं के खिलाफ न्याय कौन करेगा जी। तो जब आप एक बार न्याय की बात करते हो और खुद के पार्टी में इस प्रकार के वातावरण, इस प्रकार के भाषा का उपयोग किया जाता है जी। दूसरी बात है हिस्सेदारी न्याय जी। क्या वो हिस्सेदारी न्याय की बात कर रहे हैं जो इनके बड़े बड़े नेता लोगों ने भ्रष्टाचार किया और इनको हिस्सा नहीं दिया? हाँ। क्या उस हिस्सेदारी का न्याय करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है जी? किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं जी? और ये हिस्सेदारी का विस्तार पूर्वक जब आप बात करेंगे कि कांग्रेस में कि आप वोट दोगे तो हम आपको हिस्से देंगे जी, इसका मतलब ये है कि व्यापक रूप से ए से लेकर जेड तक इनके जो है भ्रष्टाचार की किस्से है जी, उसी में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं जी कि आम जनता को भी हम हिस्सेदार बनाएंगे। हाँ। तो इनको खुलासा करना पड़ेगा जी। श्रमिक न्याय जी, श्रमिक न्याय के लिए भी आप देखिए कि जिस प्रकार से मनरेगा चालू किया और उसके बाद उनके साथ में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ जी। क्या उस न्याय की बात कर रहे हैं? युवा न्याय जी, युवाओं के साथ में अभी तक जो बेरोजगार इस देश में है जी, इसके लिए मेन जिम्मेदार कौन है? भाई, आजादी के बाद से अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही है जी। तब युवाओं का ध्यान नहीं आया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इनको बिल्कुल खुलासा करना पड़ेगा।
दूसरी बात ये जवाब देना पड़ेगा। आप जी। न्याय की बात करते हो तो उसके साथ में अभी तक न्याय किया आपने कि आज आप बात कर सकते हो? जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कोई मंदिर की बात करते हैं कि मैं अयोध्या में जो है मंदिर निर्माण कर चुके हैं जी। हम लोग, क्योंकि उसमें हमारे जो है मैनिफेस्टो में था। हाँ। अब हम जो है काशी की भी बात करेंगे और मथुरा की भी बात करेंगे। तो गिनाने के लिए उनके पास जो है अयोध्या है। जी। आप किसान न्याय की जब बात करोगे तो किसानों के साथ में जो हुआ, क्या आप मुल्ताई गोलीकांड भूल जाए? हाँ। जी, जहां किसानों की जो है गोली से मौत हो गई, सरकार कांग्रेस की थी। जी। क्या हम राहुल गांधी के द्वारा वो वचन सब कुछ भूल जाए हाँ। जिन्होंने वो कहा था कि जहां जहां सरकार है, अभी कर्नाटक के डिप्टी सीएम के स्टेटमेंट सुना जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे किसानों को जो है कर्ज माफ कर दे? जी। तो यहाँ कौन जवाब देगा? आप न्याय की जब बात करोगे तो आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि हमारे देश में जी। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हाँ। जो उदाहरण स्वरूप आपके सामने पेश है। हाँ। अब जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम उनके न्याय करने वाले हैं। बिल्कुल। एक बात जरूर है कि आपके जिस पार्टी तरह के से गाइडलाइन में अनेक नेता है, जिस दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता यदि ये कहते हैं जी। टंच माल है, हाँ। क्या ये अपमान नहीं है नारी का? बराबर। जब ये अपमान है तो फिर किस न्याय की आप बात कर रहे हो? हाँ। दूसरी बात, जहां अभी 1200 रुपए महीने देने की घोषणा या अभी और ज्यादा देने की घोषणा अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। वहां अभी चालू है, वहां आप यदि आप कहोगे 1 लाख रुपए साल का देंगे जी। तो इसका मतलब होता है जो देंगे, आज तक किसी ने स्टेट में दिया नहीं है। हाँ। भाई आपके जहां जहां स्टेट में सरकार है वहां से पहले शुरू कर दो, सही बात है। तो आपको गिनाने के लिए आपके पास एक उदाहरण होता। जी। दूसरा यही है कि श्रमिकों के साथ में जो है जिस प्रकार से श्रमिकों का दोहन कांग्रेस राज में मिला, जी। चाहे वो ट्रेड यूनियन का गठन हो, जी। सारे अधिकतर जो है श्रमिकों को भड़का के जो है वो नेता कमाता रहा है। हाँ। तो आपने कोई ऐसी नीति निर्धारित किया ही नहीं है जो आप गिना सको। क्या करेंगे उसके साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा आपने क्या है, जी। तब तो जनता में भरोसा आएगा। यहाँ एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये न्याय पत्र है और उन्होंने कहा कि ये जो न्याय पत्र है हमारा जो 5 गारंटी और 25 गारंटी और 5 न्याय वाला 5 पिलर्स वाला जो घोषणा पत्र है, ये भारत के इतिहास में न्यायिक दस्तावेज के रूप में जाना चाहेगा। ये अतिशयोक्ति नहीं हो गई है? नहीं, देखिए वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है ना, जो बात करते हैं उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जी। क्योंकि वो तो मैनिफेस्टो तैयार करके इनके हाथ में जो पकड़ाया 20-25 बार पढ़वाया, उसके बाद जाके इनको मैदान में उतार दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। जी। हमें बात करनी होगी जिससे जहां से ये चाबी भरी जाती है। जी। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, जी। इन लोगों ने मिलके जो है ये न्याय यात्रा की जो है भूमिका रखी होगी। इनके जो सलाहकार है उन्होंने सलाह दी होगी कि यार हमारे वचन पत्र नहीं चल पाया, हाँ। हमारा दृष्टि पत्र नहीं चल पाया, हाँ। अब एक्सपेरिमेंट और किया जाए, न्याय पत्र के भाषा में यदि लोग आ जाए जी। तो अच्छा है। जी। अगले बार इससे ये भी सफल नहीं होगा, अगले चुनाव में कोई ध्यान पत्र आ जाएगा। जी। तो इस प्रकार से इनके जो है तो ये बार बार जो जिस प्रकार से ये बदल रहे हैं, हाँ। इससे भी लोगों का भरोसा उठ रहा है कि भाई मैनिफेस्टो की जो है जी। कैसे भरोसा कर ले। हाँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक और है जी। कि यदि मान के चलिए कि न्याय पत्र जो जिस प्रकार से इन्होंने ये आज जारी किया, हाँ। आज अगर इस न्याय पत्र के कारण जी। बहुत सारे लोग इससे प्रेरित होकर वोट देते हैं, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कल नहीं होगा तो वो ठगे जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। निर्वाचन आयोग को जी। और भारत सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। हाँ। कि जो मैनिफेस्टो है, चाहे उसका नाम रामलाल श्यामलाल कुछ भी रख दो, जी। अगर आपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजें शामिल की या घोषणा की और आपकी सरकार आ गई जी। और वो अमल में नहीं लाया, हाँ। तो खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, चर्चाएं तो पहले हुई हैं इस पर। जी।
इसी से क्या होता है कि इस प्रकार के कानून अगर सख्ती से पालन नहीं किया गया तो इस प्रकार घोषणा पत्र हमें हमेशा देखने को मिलेगा किसी ना किसी नाम से। हाँ लोग नामों में भ्रमित हो जाते हैं, तो ये नाम देके आप बहला फुसला नहीं सकते हो जनता को। जी और बिल्कुल। इलेक्शन के बाद हाँ इसके खिलाफ जैसे अभी 5 न्याय का ये किया, जी। किसान न्याय हो, हिस्सेदारी न्याय हो, नारी न्याय हो, श्रमिक न्याय, ये युवा न्याय, जी 30 लाख की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यदि नहीं हुआ तो हाँ इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो इसका कानून बनना चाहिए इसके लिए कि भैया अगर नहीं हो, तुमने जो भी घोषणा पत्र में दिए, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, हाँ और इम्प्लीमेंट नहीं होने पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव आयोग को इस पर सख्त होना चाहिए, न्यायपालिका को भी संज्ञान में लेना चाहिए। एक बात पर और आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जिस तरह से इस लोग घोषणा पत्र या न्याय पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया, इस पर 3 चीजों का जिक्र किया गया है। एक तो उन्होंने कहा कि इसमें एक खंड है जिसमें जिक्र है लोकतंत्र बचाओ का हमारा नारा रहेगा। दूसरा कहा कि न्यायपालिका की आजादी और मीडिया की आजादी का खंड भी इसमें एक खंड में जिक्र किया गया है। तो क्या उन्होंने वर्तमान सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए हैं इस अपने घोषणा पत्र या न्याय पत्र के जरिए कि वर्तमान में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, न्यायपालिका को आजादी नहीं और मीडिया को आजादी नहीं है? इस तरह की बातों का जो सामने लाना, इससे आपको लगता है कि क्या कहना चाह रही है कांग्रेस? आप वो कांग्रेस है जिसने आपातकाल लागू किया था। जी तो जैसे ही कोई ये कहेंगे ना कि आजादी की बात करेंगे तो तत्काल उनके ऊपर उंगली उठेगी कि भैया आपातकाल क्या था, जी क्यों उस समय इतने पत्रकारों को अपने जेल में ठूस दिए थे, हाँ क्यों क्रांतिकारियों को जेल हुआ इस समय। तो आप पहले जो है ना, पहले आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जी उसके बाद आप पर भरोसा करेंगे। आज अगर आप आजादी के ऊपर आप देखिए कितने अखबारों में कितने पत्रकार लोग अभी सरकार की आलोचना करते हैं, जी कितने लोग अभी अंदर हैं। हाँ आजादी तो अभी, मूल आजादी तो अब है। जी क्या आप खुल के कोई चीजें बोल तो सकते हो? हाँ आप सोचिए कि मोदी को कितनी गालियां दी, हाँ आपने चोर कहा, हाँ आपने एक के बाद एक नीच तक बोल दिया। जी क्या उसके बाद भी वो नेता बाहर है? हाँ ये आजादी का सबूत नहीं है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से। तो खाली पत्रकार नहीं है, हर व्यक्ति जी यदि कोई कुछ बोलता है, इस जी। देश में आजादी है। इसका मतलब यही नहीं है कि हम उठा के उसको बंद कर दे, लेकिन चंद उदाहरण हो सकता है जी। जिन्होंने अति की हो, हाँ उसके बाद जाके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। आज अगर कांग्रेस ये आपत्ति उठाती है कि आजादी नहीं है, चाहे वो मीडिया की आजादी हो, जी उस समय इन्हें गिने चुने चैनल और अखबार हुआ करते थे, हाँ आजादी नहीं होती तो उससे शंका घट जाती। हाँ अगर प्रेशर में है, आजादी नहीं है, तो फिर दिन पर दिन इतना चैनल हो गए, इतने अखबार हो गए, कि क्यों हो रहा है? क्योंकि आजादी है। हाँ पिछले 10 साल में आप देखिए ना कि चैनलों की संख्या हो जी या इसके संख्या हो, आपके अखबारों की संख्या हो, तो ये तो वृद्धि हुई ना, हाँ निश्चित रूप से। कम का हुआ। यहाँ एक बात जरूर है कि ठीक है कि जैसा कि जो बात कही है वो जनता तक कितनी पहुंचा पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा और जनता का मन, मतदाता का मन बताएगा कि उसने अपने मन में क्या निर्धारित कर रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वास्तव में जिस तरह से उन्होंने किया है, आपने सवाल खड़े जरूर किए हैं और ये सवाल आम जनता भी खड़े करेगी कि अगर किसानों को न्याय देने की बात है तो किसानों के सीने पर गोलियां क्यों मारी गई? और यदि कांग्रेस नारी न्याय की बात कर रही तो क्या कांग्रेस के उन नेताओं के द्वारा जिन्होंने महिलाओं पर फप्तियां कसी हैं, क्या उन महिलाओं को न्याय मिलेगा? तो ये तमाम चीजें सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे देश की 543 सीटों पर कांग्रेस के इस न्याय पत्र के माध्यम से, इस न्याय पत्र की लॉन्चिंग के बाद में, इसके जारी हो जाने के बाद में मतदाता के मन पर कुछ असर होगा या सवाल ज्यादा खड़े होंगे? देखिए, आप न्याय देना चाहते तो आप जो सुनंदा पुष्कर है उसके हत्यारा को न्याय दे देते। हाँ मतलब दोषी ठहरा के उसको दंड दे देते, जी तो उसके आत्मा को न्याय मिल जाती। बराबर। महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, उसको आप टिकट दे के महिलाओं का अपमान किया। तो इसी प्रकार से अनेक निर्णय है जहां आपने कठोर निर्णय लेने के बजाय उनको आपने प्रोत्साहित किया। आज आप ऐसे लोग जो हमेशा जो है नारी निंदा करते रहे, उन लोगों को आपने टिकट देके प्रोत्साहित किया। जी
ये नारियों के लिए न्याय है कि उनका सम्मान है। बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है कि जो न्याय शब्द का उपयोग किया, जिस प्रकार से जो है शब्दकोश में वहां कमी है राहुल गांधी के टीम में, ये न्याय शब्द को जो है विस्तार पूर्वक उन लोगों ने पढ़ा नहीं है। न्याय बहुत बड़ा शब्द है जी, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना और उसको दिलाना बहुत कठिन काम है। भारत का जो संविधान है पूरे दुनिया के सबसे कठोर संविधान भारत में है जी, जो लिखित संविधान है। जी, कोई देश है जहां अनेक देश, अधिकतम देशों में लिखित कानून ही नहीं है, जी, तो बावजूद इसके जो है उस देश के कानून से जो है हमारे देश के कानून इतना स्ट्रांग है जी, कि वो देश हमारे कानून का उसमें अनुकरण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इस संविधान के ऊपर अंगुली उठाना, जी, क्योंकि हर कोई जो विपक्ष में रहता है वही इस संविधान को जो है कोसता है, जी, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये संविधान सर्वोपरि है। देश के जो है सबसे बड़ा मंदिर जो है ये संविधान का है, जी, और उसी संविधान का एक शब्द है न्याय। बिल्कुल, उसको दिलाना इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस जो है इस झूठ के पिटारों के ऊपर जी, न्याय शब्द लिख के उसका कोई फायदा लेने की कोशिश करे तो जनता मेरे ख्याल से जो है ऐसा होने नहीं देगी, जी, क्योंकि न्याय बड़ा शब्द है, न्याय दिलाना कठिन काम है। बिल्कुल, तो ये न्याय शब्द जो है झूठ के पुलिंदा के ऊपर झूठ न्याय शब्द लिखे उसको आप पवित्र नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल आपने आप सही। जो है जी, आपको सबसे पहले चरितार्थ करना पड़ेगा कि हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर रहे हैं। हाँ, उन महिलाओं को अपमानित करने वाले नेताओं को दंडित करके न्याय करना पड़ेगा आपको। जी, किसानों के जो है खिलाफ उसने ये कहा था कि 10 दिन के भीतर कर्ज माफी होगा और नहीं कर पाए, उसके खिलाफ न्याय करना पड़ेगा। जी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम जिसने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, जी, जो घोषणाएं हमने इलेक्शन में किया था वो घोषणाएं है उसको उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। जी, उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो आप गाइडलाइन के खिलाफ कैसे जा रहे हो, पार्टी की गाइडलाइन है कि हमें तो मुक्तकरी की ओर जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जब आपको दिखा के काम करके दिखा के बेहतर दिलाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो न्याय शब्द है इसकी अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा है और इस परिभाषा को समझे बिना इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि जनता को भरोसा दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि यदि न्याय करना है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ जीतू पटवारी के आने के बाद में रिकॉर्ड बन गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोह भंग होते जा रहा है और पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये कार्यकर्ता के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह इस जो न्याय पत्र जारी किया गया, लेकिन वो न्याय पत्र क्या वास्तव में जनता के मनोमस्तिष्क पर असर डाल पाएगा। और जो कहा जा रहा है, जैसा कि एक वाक्य कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कि यह एक न्यायिक दस्तावेज के रूप में भारत के इतिहास में जाना जाएगा, भारत के इतिहास में पहचाना जाएगा कि किस तरह से यह सामने आ रहा है। पांच न्याय की बात कही गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 पिलर्स पर 25 गारंटियां टिकी हुई हैं। 25 गारंटियों वाला यह न्याय पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहा गया है, यह न्याय पत्र कहा गया है। अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने न्याय पत्र की संज्ञा दी है। न्याय पत्र के नाम से 25 गारंटी वाला यह मैनिफेस्टो जारी किया है। 5 पिलर्स की बात कही है, 5 न्याय की बात कही है। उन्होंने एक और न्याय की बात कही है, पर्यावरण न्याय की बात कही है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है युवा न्याय का, कि युवाओं को नौकरी देने की बात कही है कि देश में 30 लाख पद खाली हैं और उन 30 लाख पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो संभावना बताई जा रही है कि कांग्रेस का फोकस युवाओं पर है, महिलाओं पर है, क्योंकि महिला न्याय की उन्होंने बात की, नारी न्याय की बात की। हालांकि नारी न्याय की जब उन्होंने बात की तो सवाल उनके नारी न्याय पर खड़े होते हैं कि नारी न्याय वो किसको देंगे।
पाएंगे, उन नारियों को क्या न्याय दे पाएंगे जिनको कांग्रेस के नेताओं ने जिनके लिए फफ्तियां कसी हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नारी न्याय में उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी, साथ ही नौकरी में आरक्षण की बात भी कही है। श्रमिक न्याय की बात करें तो श्रमिक न्याय में उन्होंने कहा है कि हम 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगे मनरेगा के तहत, और मनरेगा में सवाल, क्योंकि यदि वो श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर ही। यहां दूसरी बात कर रहे हैं कृषक न्याय की। कृषक न्याय के लिए उन्होंने कहा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, एमएसपी के लिए कानून बनाया जाएगा। कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग की उन्होंने बात कही है कि कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा, और स्थायी बात कही है कि मेरे हिस्सेदारी के बाद सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जातिगत जनगणना की उन्होंने बात कही कि जातिगत जनगणना होगी। इस पर उन्होंने हिस्सेदारी न्याय की बात कही। हम आपको बताते हैं कि इस समय न्याय पत्र, घोषणा पत्र जारी होने के अवसर पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी मुखातिब हैं, राहुल गांधी इस समय क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल एक तरफ न्याय पत्र के माध्यम से बात की गई है कि 5 न्याय की, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो एसबीआई द्वारा डाटा सौंपा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल अतिक्रमण है, फाइनेंशियल आतंकवाद है। इसको उन्होंने इसकी संज्ञा दी है और उन्होंने कहा कि जो पूरा ब्लूप्रिंट आ गया कि किसको एक्सटॉर्शन, जो चंदा दिया गया है उसको राहुल गांधी एक्सटॉर्शन कह रहे हैं। हमारे साथ बने हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता गीतधीर जी। गीतधीर जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। गीतधीर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी गिद्धिर जी, जिस तरह से सबसे पहले बात करूंगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसे न्याय पत्र नाम दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह एक न्यायिक दस्तावेज के रूप में भारत में जाना जाएगा और पहचाना जाएगा। 5 गारंटी की बात कहीं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर? देखिए, कांग्रेस ने का इतिहास गवाह है और देश जो है कांग्रेस को भली भांति पहचानता है कि कांग्रेस केवल और केवल छल करती है। तो इनका जो घोषणा पत्र है वो भी इस बार इन्होंने फिर से
जनता के सामने जरूर प्रस्तुत किया है, लेकिन वो पूर्णतः छल के लिए ही है। इन्होंने जो अपने वादे पहले भी इतिहास गवाह 70 सालों में किए हैं, वो अभी तक के पूरे नहीं किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है, और इसी को मोदी जी की गारंटी के नाम से इस बार हम प्रचारित कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, कभी भी जो भी वादा जिस भी राज्य में किया गया उसको पूरा किया गया, चाहे आप विकास के दौर देख लीजिए, चाहे आप रोजगार का दौर देख लीजिए, चाहे आप नल जल की बात देख लीजिए, चाहे आप किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आप जो है आज देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस ने अपने जो वादे किए, चाहे ओबीसी वर्ग को लेकर हो, चाहे एससी वर्ग को लेकर हो, चाहे विकास के हो, एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। तो इस बार भी इनका घोषणा पत्र पूर्णतः जो है छल करने के लिए बनाया जैसे गया भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, तो इन्होंने 25 गारंटी की बात कर दी, 5 न्याय और 25 गारंटी, ये भी तो गारंटी दे रहे हैं। केवल और केवल छल कर रहे हैं, और जनता इन्हें भली भांति जानते हैं, पहचानती है। जनता इनके ना ही घोषणा पत्र पे विश्वास करेगी, ना ही कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेगी। इस बार हमारा नारा है 400 पार, तो निश्चित रूप से आप परिणाम भी देखेंगे चुनाव के बाद में। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गीत धीर जी। जैसा उन्होंने कहा कि यह छल है, और देश की जनता कितना भरोसा करेगी, कितना इनके न्याय पत्र पर विश्वास जताएगी, क्योंकि जहां हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने बात कही कि न्याय शब्द की अपने आप में बहुत व्यापकता है, विशालता है, और न्याय शब्द का प्रयोग करके क्या कांग्रेस जनता के मन में अपनी पैठ बना पाएगी, मतदाता के मन में अपनी बात रख पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये इसके परिणाम परिलक्षित होंगे चुनाव परिणाम में कि कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, रखने में, या न्याय का भरोसा दिलाने में कितनी कामयाब रही है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।